उत्तरी भारत ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਣੇ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 18.6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲੋਂ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਘੱਟ ਹੈ। ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਦਲਵਾਈ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ 33 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੰਡੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਮੱਧ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦੇ ਕੋਝੀਕੋਡ ਵਿੱਚ 180 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, ਉੱਤਰੀ ਮੱਧ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 170 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 150 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ MP ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਿੰਕੂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਾਂ ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ। ਕੋਈ ਕਸਰ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਰੇਲਵੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੈਠੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਹ ਤਾ, ਜਦ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਹਟਾ ਤਾ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੈੱਟ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਮੰਡਲ, ਚਾਹੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ, ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਊ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਅਸਤੀਫੇ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਲੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਜਾਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਟੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ, ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਉਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਉਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਬੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਧਰ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰੇਲੂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਿਅਸਤ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣੀ
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚਾਰੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਡ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਛ 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਚਾਰੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਬਣਾਏ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲਣਗੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਗੁਗਲੀ ਸਿੱਟੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਈ ਨਾ ਪਈ, ਉਹ ਜਾਂ ਜਲੇਬੀ ਬਣ ਗਈ ਜਾਂ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਆ। ਪਰ ਐਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਫਲੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ, ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਕਹਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਤਾ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰੂਗਾ? ਰੋਜ਼ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰੂ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 250 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਰੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਜੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੋਕੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੱਲ੍ਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਡੋਡਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਡੋਡਾ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਹਿਰਾਜ ਮਲਿਕ ਨੇ ਡੋਡਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਹ ਰੈਲੀ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ੋਨ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ होने कारण रैली ਨੂੰ मुअत्तल कर दिता गया सी। बड़ी खूबसूरत वादियों में बसा हुआ डोडा कस्बा और यहाँ के खूबसूरत लोग, और आज इतनी बड़ी तादाद में डोडा की तरक्की के लिए, जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए, अपने बच्चों की तालीम के लिए, अपने बुजुर्गों की सेहत के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए एक उम्मीद लेके इकट्ठे हुए। यहां पे जितने लोग भी आए हैं, आपका एक एक कदम आपके घर से चला हुआ हमारे सर माथे पर, सबको मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये कोई आम बात नहीं है जो आप लोगों ने कर दिया, जो आप लोगों ने करिश्मा कर दिया, ये कोई आम बात नहीं है। शायद बहुत से लोगों को आम बात लगती होगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतेगा, हिस्ट्री में आप लोगों का, इतिहास में आप लोगों का नाम लिखा जाएगा, नाम लिखा जाएगा। आने वाले पीढ़ियों को जब पढ़ाया जाएगा, पूछा जाएगा क्वेश्चन पेपर में कि जम्मू कश्मीर में विकास की राजनीति की शुरुआत कहां से हुई थी, तब उसका सही उत्तर होगा, सही जवाब होगा डोडा से 2024 में हुई थी, जब मिराज मलिक वहां से विधायक बने थे। दोस्तों, ये अरविंद केजरीवाल एक सोच का नाम है, ये पार्टी नहीं है, एक सोच है। एक बंदा इनकम टैक्स का कमिश्नर था, अपनी नौकरी छोड़ दी और झुग्गी झोपड़ियों में गरीबों के दुख दर्द बटाने लगा। उसके बाद एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया, रामलीला ग्राउंड दिल्ली में पूरा देश आया। अगर सुधर जाते, ये हमारे देश के नेता अगर सुधर जाते उसी समय, तो शायद पार्टी बनाने की जरूरत ना पड़ती। लेकिन ये मजाक करते रहे, जैसे मिराज मलिक बोल रहे हैं ना, मुझे मजाक करते थे, पहाड़ों में टोपी लेके कहां घूम रहा है। हमको भी मजाक करते थे, सड़कों पर बैठकर कानून नहीं बनेंगे, चुन कर आइए। सड़कों पर बैठकर कानून नहीं बनेंगे, चुन कर आइए। भाई हम तो चुन कर आ गए, अब तुम चुन कर आइए। आप लोग पुट्ठे सीधे रास्तों से आते हैं, राज्यसभा से, इधर से उधर से।
ये पब्लिक है, सब जानती है। लोग जब चाहें आदमी अर्श पर और लोग जब चाहें आदमी फर्श पर। तो अरविंद केजरीवाल जी ने पार्टी बनाई, नहीं पता था पार्टी कहां से शुरू होगी, दिल्ली से तो शुरू होगी, अब देश में कहां कहां जाएंगे। 2014 में पंजाब में 4 सांसद जीते, मेरा नाम भी उनमें था। तो पंजाब में हमने मेहनत की, लोगों के पास गए। 2017 में विपक्ष में आए पंजाब में। 2015 में दिल्ली में 97% बहुमत, 70 में से 67 सीट जीतकर, देश में पहले कभी इतना बहुमत किसी को नहीं आया, सरकार बनी। 2022 में यहां मेरे पंजाबी भाई बहुत खड़े होंगे, पूछ लो अपने दोस्तों मित्रों से, 2022 में 117 में से 92 सीटें देके पंजाब में सरकार बनाई। और सरकार किसने बनाई? हम कोई नेता नहीं है, हमारा कोई दादा परदादा कोई मंत्री नहीं है, जहां हम पर कोई घर पे हमें घर से टिकट नहीं मिलती कि बेटे को मिल गई, भतीजे को मिल गई, जीजे को मिल गई, साले को मिल गई। नो नो नो, हम तो आम लोग हैं। मैं तो एक टीचर का बेटा हूं, एक कलाकार के तौर पे विचर रहा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, मैसेज दिया देश को कि आओ, देश के लिए जो आना चाहते हैं, करियर भी देश ही बनाएगा, अपने करियर छोड़ के आ जाओ। लाखों लोग आ गए, उनमें मैं भी था। तो भाई साहब, ये एक ही पार्टी है जो आम लोगों के बेटे बेटियों को विधायक भी बनाती है, मंत्री भी बनाती है, मुख्यमंत्री भी बनाती है। वरना किसी और पार्टी में 70 साल हो गए, कांग्रेस में, बीजेपी में लोगों को जूतियां घिस गई, उनकी 3 पीढ़ियां हो गई, अभी ब्लॉक का प्रधान भी नहीं बना दादा, ब्लॉक का प्रधान, क्योंकि इनके रिश्तेदारी नहीं खत्म होते, वो चलते रहते हैं भाई साहब, आगे आगे चलते रहते हैं, आगे आगे। डोडा वालों, अब इनको बोल देना कि डोडा में भगवंत मान आए थे, अरविंद केजरीवाल साहब आए थे, बोल के गए हैं, ये इनके भतीजे भतीजियां, इनके साले जीजे जो बड़े बड़े चेयरमैन बने बैठे हैं, मंत्री बने बैठे हैं, इनको बोलो कि अपना अपना बोरिया बिस्तरा गोल करो, क्योंकि आम लोगों के बेटे बेटियां आ रहे हैं। आम लोगों के बेटे बेटियां आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में। हमारा तो चुनाव चिन्ह ही ऐसा है जो करते ही सफाई है, झाड़ू है चुनाव चिन्ह। इस झाड़ू से पहले हम सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे, और आने वाले दिनों में इस झाड़ू से अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा। भाई साहब, इन लोगों ने ठेका ले रखा था राजनीति का, ये समझते कुछ नहीं थे, पब्लिक को कीड़े मकोड़े समझते थे। जब मर्जी कुचल दो इनको, यहां लाठी चार्ज कर दो, चलो नौजवानों हमारे पास नौकरियां नहीं है, चलो जाके रशिया की फौज में भर्ती हो जाओ, जाओ लेबनान चले जाओ। अरे हमारे नौजवान यहां पढ़ लिख के रशिया की फौज में काम करेंगे जहां लड़ाई लगी हुई है? आप काम नहीं दे सकते। मुझे बताया मिराज ने, यहां स्कूलों की क्या हालत है, सरकारी स्कूलों की। भाई साहब, दिल्ली में जाना, आप दिल्ली में सरकारी स्कूलों की काया पलट हो गई, और आज दिल्ली में प्राइवेट स्कूल के लिए सिफारिश का फोन नहीं आता, सरकारी स्कूल की एडमिशन के लिए आता है। और सरकारी स्कूलों के बच्चे आईआईटी कर रहे हैं, आईएएस कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पोजीशनें, वकील बन रहे हैं। गरीबी, कोई लाल कार्ड, पीला कार्ड, हरा कार्ड नहीं उठा सकता, खत्म नहीं कर सकता कोई कार्ड। गरीबी सिर्फ और सिर्फ तालीम, आपके बच्चों की तालीम गरीबी खत्म कर सकती है। अगर वो 3 लाख के पैकेज पे जाके काम करेगा कहीं, तो आपके घर की गरीबी खत्म होगी। इसीलिए ये तंग है कि अगर आम लोगों के, गरीबों के बच्चे पढ़ लिख गए तो हमें कौन पूछेगा फिर। ये तो सोचकर वोट डालने लगेंगे। अगर सोचकर वोट डालने लगेंगे तो इनकी हालत वो होगी जो आपने की है। हुकूमत वो करते हैं
जिनका दिलों पर राज होता है। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। ऐसी बने हुए हैं राजे देश के, ऐसी बने हुए हैं अपनी अपने, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं अहंकार कर रहे हैं, अहंकार में जी रहे हैं, अहंकार में जी रहे हैं। ये अमित शाह, ये मोदी, ये अहंकार में जी रहे हैं भाई साहब। इनको लगता है हम ही दुनिया को चलाते हैं। अरे नहीं भाई, अरे नहीं नहीं। पंजाबी में कहावत है, पंजाबी में कहावत है कि खुदा और अहंकार का बैर होता है, दुश्मनी होती है। भगवान पसंद नहीं करता अहंकारी लोगों को। ये वो है, झूठ पे झूठ चल रहा है, जुमले पे जुमला चल रहा है। मैं जब पार्लियामेंट में था मैंने बोल दिया था, मैंने कहा मोदी जी 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती। आ गया 15 लाख आपके खाते में? पंजाब में भी नहीं आया, फिक्र मत करो, हम भी आपके जैसी हैं। 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। अब तो यह भी शक है क्या चाय बनानी आती है? यह भी शक के दायरे में है, चाय भी नहीं बनानी आती होगी भाई साहब, यह भी जुमला ही होगा। जुमले पे जुमला, झूठ पे झूठ चल रहा है। तो हम इनको ये कहना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर डाल दिया, संजय सिंह को जेल के अंदर डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल के अंदर डाल दिया, सतिंदर जैन अभी भी जेल में है। कौन है वो? सतिंदर जैन ने अस्पताल बनाए, मनीष सिसोदिया ने स्कूल बनाए, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, राजनीति को नई दिशा दी, देश की दिशा राजनीति को। संजय सिंह ने पार्लियामेंट में अंबानी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई के नारे लगाए, तो कहते अंदर कर दो, इनको अंदर डाल दो जेल में। अरे भाई साहब, कोई जेल हमको रोक नहीं सकती। मैंने सोचा है, आपको पहले ही बताया, अरविंद केजरीवाल को तो अंदर कर लोगे, लेकिन उसकी सोच को किस जेल में कैद करोगे मुझे बता दो। हम वो पत्ते नहीं, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। हम डरने वाले लोगों में नहीं है, हम किसी और मिट्टी के बने हुए हैं। अपने अपने करियर छोड़ के आए हैं, पैसे कमाने वाले काम छोड़ के आए हैं। हम देश के लिए, हम लोगों के लिए हैं। अभी मिराज मुझे बोल रहा था कि आपने पंजाब में कितने टोल प्लाजा बंद कर दिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, 16 मार्च 2022 को हमने सरकार बनाई थी, 2.5 साल हो गए, आज तक 16 टोल प्लाजे जो सड़कों पर लगे हुए थे हमने बंद कर दिए भाई साहब। क्योंकि आप भी उसी रोड से आते हो, होशियारपुर से, पठानकोट से, दिल्ली से अगर आते हो, बहुत से टोल प्लाजा बंद कर दिए। 16 टोल प्लाजे का मतलब है 62 लाख एक दिन का पंजाबियों का जेब में बचता है। और मुझे पता चला यहां सड़क पर अड्डे खोल रखे हैं भाई साहब, आते हुए भी पैसे दे जाओ, जाते हुए भी पैसे दे जाओ, लूट चल रही है। बिजली माफिया यहां पैदा कर रखा है भाई साहब। ये चनाब है, ये रावी क्रॉस करके आए हैं, सतलुज ब्यास पंजाब में है। पंजाब में और दिल्ली में बिजली 24 घंटे और बिल्कुल फ्री मिलती है, आपको क्यों नहीं मिल सकती भाई? नीयत साफ होनी चाहिए, नीयत सबसे पहले तो नेता की नीयत साफ होनी चाहिए। अब इनके देख लो बीजेपी के नेता की नीयत क्या है। जिस देश में जाता है वहां अडानी का कामकाज शुरू हो जाता है। श्रीलंका चले जाओ वहां शुरू कर लेता है, बांग्लादेश चले जाओ, कीनिया चले जाओ। असल में वो प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे नहीं जाता, अडानी उनको बिजनेस दौरे पे लेके जाता है कि यहां मेरा काम शुरू करवा दीजिए। और फिर कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा। ये बात तो अच्छी है मोदी की कि भ्रष्टाचार को खत्म कर दूंगा, क्योंकि जितने भी भ्रष्टाचार करने वाले थे वो तो बीजेपी में ले लिए, सब भ्रष्टाचारियों को इकट्ठा कर लिया। तो भाई साहब आपने जो किया है कमाल, उसके लिए आपको सजदा करता हूं, उसके लिए आपको सलाम करता हूं कि इन वादियों में
इन वादियों में आपने अरविंद केजरीवाल का एक सोच का बीज जो है वो उगा दिया। यहां से सोचो गोवा, यहां पर हमारा एमएलए पार्लियामेंट में हमारा हिस्सा असेंबली में, पंजाब में हमारी सरकार, दिल्ली में हमारी सरकार, गुजरात में हमारे एमएलए 5, मध्य प्रदेश में हमारा मेयर महरौली में, चंडीगढ़ में हमारा मेयर, चंडीगढ़ में हमारा कारपोरेशन, गोवा में हमारे एमएलए 2। यहां से गोवा तक आम आदमी पार्टी सिर्फ 10 साल में फैल गई। यही डर है इनको कि सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाले लोग हैं और लालच इनको कुछ है नहीं, और देसी लोग हैं, आम लोग हैं, कोई इनको हाई फाई ये वो नहीं चाहिए, ये तो हमें खत्म कर देंगे। और यही चीज है कि जितनी देर आप लोग हमारे साथ हो उतनी देर हमें किसी चीज का डर नहीं है। उसी चीज जब तक आप लोगों का साथ है, जब तक आप लोगों का साथ है, हमें किसी चीज का डर नहीं है, क्योंकि वक्त की कमी है। और हमने हमारे नेता जिन्होंने देश की दशा दिशा बदली, और जिन्होंने बड़े बड़े नेताओं को, 56 इंच के सीने वालों को पसीने छुटवा दिए, जब उनका नाम आता है तो थर थर कांपते हैं, उनको भी सुनना है। मैं आखिर में यही कहूंगा, जैसा कि मिराज भाई ने कहा है, पहली बात तो मुझे इस बात का इल्म है कि यहां से बहुत से लोग पीजीआई में जाते हैं चंडीगढ़ इलाज करवाने। शर्म की बात है, यहां से पहुंचते पहुंचते कितने लोग रास्ते में दम तोड़ जाते होंगे। अगर यहीं पे आपको पीजीआई एम जैसे हॉस्पिटल मिले तो क्यों जाएं हम। और दिल्ली में, पूरे देश से दिल्ली में इलाज करवाने आते हैं। 22 स्टेटों में, अब तो 23 हो गए हरियाणा मिला के, 23 स्टेटों में इनकी सरकार है बीजेपी की। एक भी स्टेट में बिजली फ्री नहीं है, एक भी स्टेट में कोई ढंग का हॉस्पिटल नहीं है, कोई स्कूल नहीं है। तो भाई साहब, यही मिराज ने कहा है कि आप आते जाते रहना। मैं तो बिल्कुल पड़ोसी हूं, मेरे पास भी आप आते जाते रहना, लेकिन खैरियत से आना। पीजीआई के लिए मैं नहीं कहूंगा कि आप आते जाते रहना, खैरियत से आना, मिलने आना। और मैं यही कहूंगा कि लोगों को अक्सर कहते सुना है कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। लोगों को अक्सर कहते सुना है कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। तो 2 नारे लगाऊंगा, दोनों हाथ ऊपर करके। ये वादियों में से निकल के आवाज दिल्ली तक पहुंचे, और उन भ्रष्टाचारियों के घरों के कांच की जो शीशे हैं वो उनको कांपने लगे कि ये क्या हो रहा है। दोनों हाथ ऊपर उठा के, इनकलाब, इनकलाब।